Everyone. Good morning. Good morning. So it's a beautiful day. It's a beautiful weather. I'll start the screen sharing. Yes, ma'am. In Solan, it's raining here from last night. Yes, it has also started raining right now here. आज चंचल ने पढ़ना है ना? Good morning, Poonam Di. Good morning. Good morning. Such a good and morning, good everybody. morning. और आज का प्रैक्टिस तो बहुत ही अच्छी है. Day 6 works like magic. It's actually a no complaint day. आज हम पढ़ेंगे. मेरी आज one of the best practices है. And how it has changed my life, really. So let's all first, like how Deepti ma'am does it, let's all affirm. आज सुबह सुबह हम मॉर्निंग में एफर्मेशन करते हैं. रेन्स भी हो रही हैं. लेट्स डू मॉर्निंग एफर्मेशंस. मैं बोलूंगी और आप लोग सब मतलब म्यूट कर लीजिएगा अपने आप को और आउट लाउड जो लोग बोल सकते हैं आउट लाउडली वो आउट लाउडली बोल लीजिएगा. चंचल आप अपना म्यूट कर लेंगे प्लीज, या प्रिया आप कर देंगे चंचल को म्यूट? Yes, yes, ma'am. So I'm starting with the affirmations. Today is going to be the best day of my life. Every day is an opportunity to learn and to grow in life. I am born to live a happy and successful life. Universe loves me and helps me in every situation of my life. I am a special child of God. I start my day with positivity and end my day with positivity. I am a positive, confident, and a mentally strong person. Everything is possible for me, and nothing in this world is impossible for me. I love my life and always do what gives me the highest excitement in life. I always see the positive in every situation of life. I am a magical soul. I love myself and accept myself the way I am. I am the source of happiness and love. I spread positivity wherever I go. I repeat, I spread positivity wherever I go. I'm always surrounded myself with positive people. I am a magical soul and I attract miracles in my life. I have great mentors in my life which help me live my dream life. Something most wonderful is about to happen today. Thank you so much. And let's start our morning reading session. Chanchal is going to read today. Day 6, works like magic. I'm just going to explain this picture. मैं explain कर देती हूँ, फिर Chanchal read करेंगी. Can you please everyone mute yourself? So इसमें दिखाया है कि एक टेबल है, मतलब ये बेसिकली एक वर्क टेबल कह लो, स्टडी टेबल लग रहा है जिसमें बहुत सारी बुक्स हैं,
पेंसिल है, लैंप लगा हुआ है और जर्नल रखी हुई है जिसमें से मैजिक निकल रहा है। सो ये स्टडी टेबल है या वर्क टेबल है। दैट मीन्स कि आज हम अपने वर्क को कैसे मैजिकल बनाएं। वर्क को मैजिकल बनाने का मतलब ये नहीं है कि जो सिर्फ ऑफिस जाते हैं उन्हीं का डे है। आज हम लोग जो भी कुछ करते हैं, आज हम कई लोग हम में से पढ़ाई कर रहे हैं, अपनी मतलब फर्दर पढ़ाई कर रहे हैं। कई लोग हम लोग हाउस वाइफ हैं जो कि अपने घर का अच्छे से ध्यान रखते हैं, अपने बच्चों का, अपने बड़ों का, अपने स्पाउसेस का। और कई लोग हम लोग जॉब कर रहे हैं, कई लोग हम लोग कंसल्टेंट हैं, कई लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं। तो ये आज की प्रैक्टिस हर एक जन के लिए है, क्योंकि हम सब जन कोई ना कोई काम जरूर कर रहे हैं। और कैसे हम अपने काम में जादू लेकर आए, कैसे हमें अपने काम में इज्जत, पैसा, शोहरत, रुतबा कैसे मिले, कैसे एप्रिसिएशन मिले, कैसे रिकॉग्निशन मिले, आज का दिन है। और आज का, जैसे दीप्ति मैम कहती है, नो कंप्लेन डे है आज के दिन। बिकॉज जब हम देखेंगे तो हम जब काम करते हैं, मतलब अगर आज हम हाउसवाइफ भी हैं तो हमारे जो स्टाफ हमको हेल्प करता है, हमको इतनी चीजें हमको हेल्प करती है। हमारे पास इतनी अच्छी इलेक्ट्रिसिटी है, हमारे पास गैस है, हमारे पास ओवन है, माइक्रोवेव है, फ्रिज है। और जो ऑफिस में काम करते हैं, आप सोचो अगर उनके ऑफिस में आए और उनको सुबह खुद झाड़ू पोछा करना पड़े या हर एक पानी लाना पड़े, तो हमारे को कितने रिसोर्सेज मिले हुए हैं। सो चंचल प्लीज पढ़िए डे 6 वर्क्स लाइक मैजिक। चंचल आप म्यूट में हैं। Day 6 works like magic. If you take any activity, any art, any discipline, any skill, take it and push it as far as it will go. Push it beyond where it have ever been before. Push it the wildest edge of edge. Then you force it into the realms of magic. ये कोट लिखा है टॉम रॉबिन्स से, ही इज अ राइटर। मैं ये कोट एक्सप्लेन कर देती हूँ कि आज हम कुछ भी करते हैं, आज हम अपना काम कर रहे हैं, हम घर का काम कर रहे हैं, हम क्रिएटिव पर्सन हैं, हम आर्टिस्ट हैं, हम पढ़ रहे हैं, हमें अपना 110% देना है। हमको मतलब उसको इतना, मतलब क्या होता है कि जब भी हम कुछ करते हैं, हम हमेशा जब हम जॉब भी करते हैं, हम सोचते हैं हमें क्या मिल रहा है। बट यहाँ पर टॉम रॉबिन्स कह रहे हैं और रॉन्डा बर्न कह रही है कि आप क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हो, आप क्या दे रहे हो। और आप जो भी आप कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, जो भी आपका प्रोफेशन है, आप कुछ भी कर रहे हैं, उसमें आप 100% दीजिए। और आपका सिर्फ यही ख्याल होना चाहिए कि मैं अपने काम को बेटर कैसे कर लूं। हम सबसे बड़ी गलती कब करते हैं, जब हम कंप्लेसेंट हो जाते हैं। चाहे हम कंसल्टेंट हैं, चाहे हम जॉब कर रहे हैं, हम भी कहते हैं कि हमें इतना ही पैसा मिल रहा है, हम इतना ही, हमारे लिए इतना ही ठीक है, हम इतना ही कंट्रीब्यूट करेंगे। नहीं, आप अगर कुछ भी काम कर रहे हैं, इसमें लिखा है कि पुश इट बियॉन्ड, मतलब इतना 110% डालिए कि आपने कभी देखा ही नहीं है, मतलब कि आप इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं। जब आप इतनी शिद्दत से काम करेंगे, जब आप इतनी मेहनत से और इतनी लगन से काम करेंगे, तो कोई फोर्स ऐसी है ही नहीं। और जब आप अपना ग्रेटिट्यूड डालेंगे अपने काम में कि आप कि मतलब कि यूनिवर्स को आपको देना ही पड़ेगा, आपको देना ही पड़ेगा मोर वेल्थ, मोर प्रॉस्पेरिटी, मोर रिकॉग्निशन। पर हम क्या उतनी शिद्दत डालते हैं अपने काम में? क्या हम उतनी मेहनत करते हैं अपने काम में? तो हम आगे पढ़ते हैं। आज टुडे द रेन गॉड्स आर रियली वेरी हैप्पी, इट्स रियली वंडरफुल वेदर टुडे। हाँ जी चंचल पढ़िए। हाउ कैन इट बी? How can it be that? Can I please request Anchal to be a bit slow because people are saying that she has to get a bit slow. थोड़ा सा slowly पढ़ेंगे। चंचल थोड़ा सा स्लोली पढ़ लीजिए आप। Okay, ma'am. How can it be that a person who is born into total poverty starts
out with nothing and has very little education goes on to become a president or a celebrity, or builds an empire and becomes one of the wealthiest people in the world. And how is it that two people can start out in the same career, and yet one person career goes from success to even greater success, while the other person works himself or herself into the ground with little success, no matter how hard they try? पढ़िए चंचल। The missing link to success is gratitude, because according to the law of attraction, you have to be grateful for what you have to be attract success to you. So without gratitude, it's impossible to have permanent success. To bring success or increase the good things in your job or work, like opportunities, promotions, money, brilliant ideas, inspirations, and appreciation. It is essential to grateful for your job or work. The more gratitude you have, the more you will have to be grateful for. And you should be getting the idea by now that to increase anything in your life, you have to be grateful for what you already have. Whoever has gratitude for their work will be given more, and he or she will have an abundance. Whoever does not have gratitude for their work, even what he or she will be taken from him or her. When you चंचल 1 मिनट, हम अभी इतना ही पढ़ते हैं, थोड़ा सा ये एक्सप्लेन कर लेते हैं फिर आगे मूव करते हैं। सो इसमें ये है कि आज का दिन है हमको ग्रेटफुल होने के लिए, हमारे काम के लिए, और जो भी चीजें हमारे काम में हेल्प करती हैं, जो भी लोग हमारे काम में इन्वॉल्व है, उन सबका उन सबको ग्रैटिट्यूड, शुक्राना देने के लिए, ताकि हम अपने काम में और भी मैजिक ला सकें। तो हमने बहुत बार सुना है कि कुछ लोग बहुत तरक्की कर जाते हैं, चाहे एक ही फैमिली की सपोज 2 भाई भी हैं, बहुत तरक्की कर जाते हैं, एक जन नहीं तरक्की कर पाता, तो हम कहते हैं वो आदमी बहुत लकी है, या उसको उसका लक ने बहुत साथ दिया है। ऑफ कोर्स आप देखेंगे कभी भी तो उनकी लाइफ में वो जरूर कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं, वो जरूर ग्रेटफुल हैं, वो जरूर अपने काम को बहुत शिद्दत से कर रहे हैं, बहुत ग्रैटिट्यूड दे रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि वो इससे हर एक चीज सेम है और एक आदमी बहुत प्रॉस्पर कर रहा है, एक नहीं। जरूर वो अपने काम को, वो जरूर जिस हिसाब से अपना काम करते हैं उसमें बहुत फर्क होगा। तो हम इवन एग्जाम्पल भी लेते हैं अंबानी ब्रदर्स का, कि मुकेश अंबानी की कहाँ पहुंच गए हैं और वो कितना शुक्राना करते हैं, उनके घर में हमेशा शुक्राना होता है, वो अपने एम्प्लॉयज का इतना ध्यान रखते हैं, वो इतने गेट टुगेदर्स करते हैं ताकि वो उनके एम्प्लॉयज, उनकी फैमिली के साथ उनका रेपो बनाए रखें। जब भी कोई हॉस्पिटल में जाता है वो स्पेशली नीता अंबानी या मुकेश अंबानी उनसे, या कोई भी फैमिली मेंबर उनसे मिलने जाते हैं। सो जो दूसरे होते हैं उनके लिए बहुत आसान होता है कहना, बट एक्चुअली जिनकी भी सक्सेस स्टोरीज हैं, जो लोग भी बहुत प्रॉस्पर कर गए हैं, वो आप उनको देखेंगे कि जरूर वो मतलब बहुत ग्रेटफुल होते हैं अपनी हर एक चीज के लिए। तो आज का दिन है, हमने अपने रिलेशन में ग्रेटफुलनेस हो गए, हम मनी के लिए ग्रेटफुल हो गए, हम हेल्थ के लिए ग्रेटफुल हो गए, आज हम अपने वर्क के लिए ग्रेटफुल होंगे, ताकि हमारा वर्क है, कईयों के पास ड्रीम वर्क नहीं है, सब कहते नहीं अभी मेरे को भी अच्छा नहीं लग रहा, मुझे मजा नहीं आ रहा, वो वेट करते हैं अपने कि उनको बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज मिले, वेट करते हैं कि हमको बेटर क्लाइंट मिले। पर जब तक हम अपनी प्रेजेंट सिचुएशन के लिए ग्रेटफुल नहीं है, हमको और हम तरक्की कर ही नहीं सकते। हमको जैसे कहती है ना अर्चना मैम, इनॉर्मस सफलता मिल ही नहीं सकती है।
तो अगर आज हम हाउसवाइफ भी हैं, अगर हम सारे दिन परेशान रहते हैं, हम हमेशा बोलते हैं कि हमारे स्पाउस हमको हेल्प नहीं करते, बच्चे सारे दिन हेल्प नहीं करते, बड़ों के लिए कुछ कहते हैं, तो कभी भी उनको वो जो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, एप्रिसिएशन मिलनी चाहिए, वो नहीं मिलेगी। क्योंकि जो वो काम कर रहे हैं, वो इतने मतलब वो इतने अच्छे मन से नहीं कर रहे, ग्रेटफुल नहीं हो रहे। तो इसमें हमारा कोड भी है कि जो भी हमारे अपने वर्क के लिए ग्रेटफुल है, चाहे कुछ भी, या पढ़ाई भी कर रहे हैं, अगर हम उसके लिए ग्रेटफुल हैं तो हमको और अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और हम प्रॉस्पर होंगे। पर अगर हम ग्रेटफुल नहीं हैं तो तभी हमारा, कभी भी देखेंगे कि जिनका काम कम होता जा रहा है या पैसे कम होते जा रहे हैं या शोहरत नहीं मिल रही है, वो इसलिए क्योंकि हम कहीं ना कहीं ना खुश हैं अपने काम से। हाँ जी, चंचल पढ़िए। व्हेन यू आर ग्रेटफुल फॉर योर जॉब। चंचल अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। When you are grateful for your job, you will be automatically give more to your work. And when you give more to your work, you will increase the money and success that is returned to you. If you are not grateful for your job, you will automatically give less. When you give less, you decrease what comes back to you. And as a result, you will never be happy. मैम वो मिसप्लेस हो गया था। हाँ सॉरी, वो स्क्रीन चली गई थी। अब आपको दिख रहा है चंचल? Yes, ma'am. You will never be happy in your work. You will never give more than you have to, and your job or work will stagnate and eventually deteriorate, which could mean losing your job. Remember, for those who do not have gratitude, even what they have will be taken from them. The amount you give in gratitude is exactly proportional to the amount you receive in return. You control the amount you receive by the amount of gratitude you give. If you are in, if you are a एक मिनट चंचल। सो इसमें हमने यही बोला है कि अगर हम ग्रेटफुल होते हैं, तो ये फीलिंग्स की बात है। हम क्या अट्रैक्ट करते हैं, हम क्या फीलिंग्स देते हैं, क्या कई आप देखेंगे हमारे सबके घरों में जो बिजनेस करते हैं, काम करते हैं, वो घर वापस आते हैं तो हमेशा कंप्लेन करते हैं कि आज का दिन, जो जो जॉब करते हैं वो हमेशा कहेंगे आज में तो बॉस बहुत ऐसे करता है, बहुत तंग करता है, बहुत परेशान करता है, जितने पैसे नहीं देता उससे ज्यादा काम कराता है। या बिजनेस में हम हमेशा ये सुनते हैं अपनी फैमिली मेंबर से कि ओ आजकल तो बिजनेस बहुत ऐसे ही चल रहा है, कोई काम नहीं है, ऐसे ऐसे करके बात करते हैं। सो हम एनर्जी क्या दे रहे हैं? हम जब हमारा बिजनेस बहुत फ्लरिश करता है, जब बहुत क्लाइंट्स आते हैं, तब तो हम कभी घर आकर ये नहीं बोलते कि ओ हमारा तो, कई कई लोग कह लेते हैं, पर कभी कभी बहुत लोग नहीं कहते हैं कि ओ आज तो हमने बहुत डील क्रैक्स करी हैं और बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है काम करने में। पर कहाँ जहां पर भी थोड़ा स्लो डाउन आ जाता है, एंड इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। आज हम जब काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, कुछ भी करते हैं, कभी कभी बहुत उतराव आएगा, कभी कभी चढ़ाव आएगा, बट जब ये हमारी एनर्जी, हम क्या एनर्जी दे रहे हैं, जब हम परेशानी की एनर्जी देते हैं तो हम वही अट्रैक्ट करते हैं। ये एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि आप जितने ग्रेटफुल होंगे अपने काम के लिए, अपने क्लाइंट्स के लिए, आप उतना इंक्रीज करेंगे। और एक और बात है, सबसे बड़ी बात है कि आप क्या फीलिंग दे रहे हैं, क्या आप डिजर्विंग फीलिंग दे रहे हैं, क्या आप विश्वास करते हो कि आप डिजर्व करते हो इतनी प्रोग्रेस, इतनी प्रॉस्पेरिटी, इतनी रिकॉग्निशन। जब आपको अपने ऊपर इतना सेल्फ लव नहीं है कि आप डिजर्व करते हो, तो आपको वो नहीं मिलेगा। सो एक तो फेथ होना जरूरी है कि हाँ मुझे पता है कि आज मैं ग्रेटफुल हूं तो मेरा वर्क बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और एक ये है कि आपको डिजर्विंग, क्या आप अपने को डिजर्विंग समझते हो? कभी कभी कितनी बार ऐसे होता है कि सपोज कोई भी प्रोफेशंस में होते हैं, कंसल्टेंसी में होते हैं, तो हमें लगता है हम किसी और का नाम सुनते हैं जो बहुत ऊंचाई में होते हैं, कहते हैं यार मैं तो वो कभी भी वो ऊंचाई नहीं ले सकता, मैं आई डोंट हैव इट इन मी। जब हमारा इतना यही थॉट होता है कि आई डोंट हैव इट इन मी, तो वी विल नेवर हैव थिंग्स व्हिच विल मेक अस सो प्रॉस्परस।
तो पहले तो अपने आप को देखिए कि आप अपने बारे में क्या क्या सोचते हैं और क्या ख्याल रखते हैं कि आप क्या वो सक्सेस डिजर्व करते हैं। और हमेशा ये बात याद रखिए कि आपके पास एक रिमोट है अपने हाथ में, है ना। जितना आप ग्रैटिट्यूड दोगे उतना आपको इनॉर्मस सफलता मिलेगी, चाहे वो हाउस वाइफ भी हो। जितना आप ग्रेटफुल होंगे अपने घर वालों के लिए, अपने बड़ों के लिए, आपका जो काम है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए, उतनी आपको अप्रिसिएशन मिलेंगी, उतने आपको रुपए मिलेंगे, उतनी आपको जिसे कहते हैं ना कि सब प्यार करेंगे। सो ये रिमोट हमेशा अपने हाथ में रखिए और हमेशा कंट्रोल अपने हाथ में रखिए कि आप क्या कितने ग्रेटफुल हैं अपने काम के लिए। हाँ जी चंचल पढ़िए। इफ यू आर अ बिजनेस ओनर, चंचल अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। If you are a business owner, your business will value will increase or decrease according to your gratitude. The more grateful you are for your business, your customer, and your employee, the more the business will grow and increase. It is when business owners stop being grateful and replace gratitude with worry that their business spirals downward. If you are a parent and your work is taking care of your children and managing your home, look for the things to be grateful for at this time in your life. It is often a once in a lifetime opportunity, and when you can be grateful for this time, you will attract more support, more help, more beautiful moments, and more happiness to the experience. You should love your job, whether it is or be excited about going to work, and you shouldn't settle for anything less. If you don't feel that way about your current job, or if it's not your dream job, the way to receive your dream job is by first being grateful for the job you have. या 1 मिनट चंचल। सो आज हम कितनी बार कहते हैं कि हमारा काम है, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है, पर आपने देखा है जो कितने ग्रेट मैन है लाइक अब्दुल कलाम, है ना, हमारे जो पीएम है नरेंद्र मोदी, उनके पास कोई भी रिसोर्सेज नहीं थे, बट टुडे हाउ व्हाट ग्रेट पीपल नाउ दे आर। स्पेशली अब्दुल कलाम केम फ्रॉम अ वेरी वेरी उनका बैकग्राउंड क्या था, बहुत हम्बल बैकग्राउंड था, बट कितना उन्होंने नाम शोहरत कमा लिया। तो कभी मत सोचिए कि मुझे नाम कमाने में या शोहरत कमाने में मेरे पास एक लेगेसी नहीं है, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है। सबसे बड़े रिसोर्स आप हैं। आपका ग्रैटिट्यूड, आपका कॉन्फिडेंस, आपका मतलब जिससे आपका फेथ कि आप कर सकते हैं, आपका जुनून, ये आपके रिसोर्सेज हैं। हम हमेशा आउटवर्ड रिसोर्सेज पर डिपेंड करते हैं, मेरे पास ऑफिस नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है अपना काम बढ़ाने को। ये आपकी फीलिंग पर डिपेंड करता है, ये आपकी वाइब्रेशंस पर डिपेंड करता है कि ना कि काम पे। सो रोंडा बर्न कह रही है कि अगर आप बिजनेस ओनर है, आप बिजनेस करते हैं, तो अपने क्लाइंट्स के लिए ग्रेटफुल होइए, आपका जो ऑफिस है उसके लिए। और आज हम जब बैठेंगे ना तो ढूंढने के लिए छोटी छोटी चीजें, इवन पंखा, सोचिए अगर आपके ऑफिस में पंखा ना हो तो कितनी गर्मी लगेगी, कैसे काम करोगे। आपको ग्लास पानी का मिलता है, आपको खाना मिलता है, आपका सफाई करने के पियोन्स हैं, आपके गेट खोलने के लिए पियोन्स हैं। और जब हम घर में भी काम करते हैं, हमारे पास सबके पास इतनी चीजें, इतने लोग हैं, पेंसिल है, पेन्स हैं, लैपटॉप्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, हमारे किताबें हैं, हमारे वो जितने हिसाब की किताबें हैं, देन प्रिंटर्स हैं, पेपर्स हैं। मतलब आज अगर आप एक्चुअली, आज का दिन है, आपको हर एक चीज, हम आगे पढ़ेंगे क्या है, और इसमें लिखा है कि आपको अपने काम से बहुत प्यार होना चाहिए। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, इवन इफ उनको अभी वो काम इतना अच्छा नहीं लग रहा है, पर आप हमेशा सोचिए कि जहां पर भी आप हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उसके लिए अगर आप ग्रेटफुल नहीं होंगे तो आपको वो ड्रीम जॉब नहीं मिलेगी।
अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, स्टूडेंट हो, पोस्ट ग्रेड कर रहे हो, कॉलेज में हो, अगर आप बोलोगे माय कॉलेज सक्स, ये नहीं अच्छा, वो नहीं अच्छा, आपको कभी भी अपना ड्रीम कॉलेज नहीं मिलेगा, कभी भी वो प्रोस्पेरिटी नहीं मिलेगी। कितने लोग इंटर्नशिप्स कर रहे हैं, सो बी वेरी हैप्पी विद फ्रॉम वेयर यू आर प्लेस्ड राइट नाउ। आप अगर उसके लिए ग्रेटफुल होंगे तभी आपको आगे और अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। और अगर आप अब पेरेंट हैं, अपना घर का काम संभाल रहे हैं, तो रियली आप बहुत ग्रेटफुल होइए अपनी फैमिली के लिए। आपको भी अपॉर्चुनिटी मिलती है सर्व करने के लिए। और इसमें भी लिखा है कि इट इज, और अगर आपको किसी को भी जो हाउस वाइफ है उनको कुछ काम करना है, तो अगर आप अभी जो कर रहे हैं उसके लिए ग्रेटफुल नहीं होंगे तो आपको अपॉर्चुनिटीज आगे बहुत मुश्किल से मिलेंगी। तो आपको सपोर्ट चाहिए, और पैसा चाहिए, प्यार चाहिए। आप प्लीज बहुत सब चीज के लिए ग्रेटफुल होइए। आगे हम पढ़ेंगे कि हमें कैसे ग्रेटफुल होना है। हाँ जी, चंचल पढ़िए, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए चंचल और पढ़िए। टुडे इमेजिन, Today, imagine that you have an invisible manager whose job it is to keep a record of thoughts and feelings you have about your job. Imagine that your manager will follow you wherever you go today, poised with pen and notebook in hand. Every time you find something about your job to be grateful for, your manager will make a note. Your manager will make a note of it. Your job is to find as many things as you can be grateful for. So at the end of the day, your manager has a long list of your gratitude. The longer the list is, the more magic your invisible manager can bring to your money, work, success, opportunity, enjoyment, and fulfillment. Think, think about you all things you could be grateful for in your work. To begin with, think about the fact that you actually have a job. Think about how many people are unemployed who would give anything to have a job. Think about think about the time-saving equipment you use, such as phone, printers, the internet, and the computers. Think about the people you work with and the friendships you have with them. Think think about the people who make your job easier, such as receptionists, assistants, janitors, and delivery people. Think about how good it feels when you receive your paycheck, and think about the favorite aspects of your job that you love doing. मुझे चंचल की आवाज नहीं आ रही कि किसी को भी नहीं आ रही? मैम आ Ma'am, रही है आवाज तो। आ ma'am, रही है, सॉरी, फिर completed मेरे the इंटरनेट। paragraph. अच्छा, ma'am, चंचल, I हम्म, have completed the paragraph. अच्छा चंचल, सॉरी, मेरा इंटरनेट। Okay. Have your invisible manager make a note each time you find something you are grateful for by saying, I am so grateful for what. The more deeply your manager can see you are feeling gratitude and you are feeling gratitude, the sooner your manager can start to make the magic happen in your work, and the more magic will be created. It is possible that you could generate so much gratitude for your work in one day that you would see the circumstances instantly improve.
Lucky breaks don't happen by accident. They are simply gratitude's magical power at work. If this work if this works like magic, practice falls on a weekend or when you are not at work, move on to the next day's practice or practice and then go back and use the magical practice on the first day you are back at work. Magic practice number 6 works like magic. First, First one, repeat steps 1 to 3 of magic. Practice number 1, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Read your list. Say thank you, thank you, thank you, and feel gratitude for each one. Second one, while at work today, imagine you have an invisible manager following you around, taking taking notes every time you find something to be grateful for. Your job today is to look for as many things as you can be grateful for. Third one, have your manager make a note each time you find something you are grateful for by saying, I am so grateful for what, and feel as grateful as you can. Fourth one, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic word thank you for the best things that happened during the day. Hi everyone. I think Poonam ma'am has got stuck, so let's continue from here. Her internet is probably not working right now. So this particular practice says that this practice is today it will be done for the work we have. Suppose we are a working woman, or we are a housewife, or we have we have a small business of our own, or else we have a big business of our own. We have to be grateful for whatsoever job we are in right now. Okay. So yeah, Poonam ma'am is back. Ma'am, please take over. Are you back, ma'am? Okay, let's continue then. So here we You can are, get yeah. Yeah. Thank you so much. Something I think I need to give a lot of gratitude for my Wi-Fi connection here. Thank you Priya so much for taking over. So आज का दिन है, हमको बहुत grateful होने के लिए हमारे काम में जो भी चीजें आज का दिन, हमको कोई भी कंप्लेंट अपने बॉस के लिए, जो अगर हम काम कर रहे हैं, अगर हम कंसल्टेंट्स हैं तो अपने क्लाइंट्स के लिए कितनी बार हम कह देते हैं, ओ मैंने इस क्लाइंट को फोन करा, ये इससे उठाती नहीं है फोन, या उठाता नहीं है फोन, या मेरी पेमेंट नहीं कर रहा है। कितनी बार हम घर में हाउस वाइफ्स होती है, कितनी बार अननोइंगली कभी कभी बस ऐसे ही बोल देते हैं फोन में या किसी को शेयर करने के लिए कि मेरे बच्चे तो बहुत ही ऐसे हैं, कोई हेल्प नहीं करते, सारा घर छोड़ जाते हैं, कोई मेरी कदर नहीं करता है, मैं जितना मर्जी काम कर लूं मुझे कोई एप्रिसिएशन नहीं मिलती है। हम कभी कभी ऐसे ही कंप्लेन करते रहते हैं और एक बार किसी को बोलते हैं तो वो मल्टीप्लाई होती रहती है ना। सो आज का दिन है, हमको आज जो जो चीजें में हाथ लगाते हैं हम अपने काम के लिए, इवन हम जब डेस्क पे बैठते हैं तो हमारी चेयर के लिए, डेस्क के लिए, सबसे बड़ा तो हमारा मोबाइल के लिए, हम किसी भी कभी भी अपने क्लाइंट को फोन कर सकते हैं, किसी से भी दुनिया में कनेक्ट कर सकते हैं, अपने वाईफाई के लिए, इंटरनेट के लिए, अपने जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स हम यूज करते हैं, पानी के लिए, खाने के लिए, जो जो लोग, अगर आज अब मैं बैठी हूँ और मेरा कोई हेल्प कर रहा है मेरी किचन में काम करने के लिए ताकि मैं अपने क्लाइंट से डील कर सकूं,
वो भी बहुत बड़ी नियामत है ना कि मैं अपना आराम से काम कर पा रही हूँ, क्योंकि आज सपोज कोई हस्बैंड है, उसकी वाइफ सारा काम संभाल रही है, तो ऐसा नहीं कि वो हस्बैंड का कंट्रीब्यूशन है कि वो पैसा कमा रहा है। आज अगर वाइफ ने उनका काम संभाला हुआ है घर में, तभी वो आदमी इतने सुकून से काम कर रहा है। सो कभी भी जो भी हाउस वाइफ है, कभी भी अपने काम को ये मत सोचिए कि ओ मैं कमा नहीं रही हूँ या कुछ नहीं। आज अगर आपके घर में जो भी कोई काम कर रहा है, आपके पेरेंट्स, मदर है, पेरेंट्स हैं, आपकी आपके स्पाउसेस हैं, तभी आप उन्नति कर रहे हैं, बिकॉज आपका घर किसी ने संभाला हुआ है। तो उनके लिए बहुत ग्रेटफुल होइए। अपने जो भी अपने स्टाफ के लिए हुई, अपने आपका ऑफिसेज है, आपका घर है, आप वर्क फ्रॉम होम करते हो, कहीं से भी करते हो, जो भी कुछ करते हो, हर एक चीज के लिए 5 एलिमेंट्स के लिए ग्रेटफुल होइए। सो आज का दिन है। सोचिए, आज एक कोई इनविजिबल मैनेजर बैठा हुआ है, सोचिए कोई मैनेजर बैठा हुआ है और आप उसको बार बार बोल रहे हो कि आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस, आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस, और वो अदृश्य है, वो आपको दिख नहीं रहा है, पर सोचिए कि आपके साथ में कोई ना कोई आदमी चल रहा है, एक डायरी और एक पेन लेकर, जो बार बार आपको आप बार बार उसको बोल रहे हो। जितनी बड़ी लंबी लिस्ट करोगे, जितने ग्रेटफुल होंगे आप, उतना ही आप देखेंगे हमारे काम में कितने न्यू प्रॉस्पेक्ट्स आते हैं, कितना न्यू हमें अपॉर्चुनिटीज मिलती है। कितनी बार जब मैं सोचती हूँ अपनी लाइफ में, मुझे लगता है कि ये कैसे अपॉर्चुनिटी मुझे मिल गई, बट दिस ऑल बिकॉज ऑफ द ग्रैटिट्यूड वी डू एंड दिस लवली प्रैक्टिसेस। तो एक चीज है कि हमें प्रैक्टिस पता है आज की, बट एक चीज है ये असाइनमेंट डिलीजेंटली, शिद्दत से करने की। अभी से, जब से मतलब अभी से शुरू हो जाइए। हर एक चीज जो आपको हेल्प करती है, अगर आप ऑफिस जाते हैं, आपकी कार है, मेट्रो है, वो सड़क है, जो लोग मेट्रो को साफ करते हैं, जो आपकी कार क्लीन करते हैं, जो आपके स्कूटर्स को क्लीन करते हैं, पेट्रोल होता है, डीजल होता है, कितनी चीजों से चीजें चलती है। अगर सपोज वो नहीं होता, आज पेट्रोल ही ना हो, डीजल ना हो, आप चला ही नहीं सकते अपनी व्हीकल, चार्जर्स ना हो, तो आप अपना मोबाइल, अपना लैपटॉप, अपना कंप्यूटर नहीं यूज कर सकते हो। तो आज छोटी छोटी चीजों को एकदम अंदर से निकाल कर हम ग्रेटफुल होंगे। और फिर हमारी जो सुबह की प्रैक्टिस है, काउंट माई ब्लेसिंग, हमने सुबह सुबह आज एफर्मेशंस कर ही ली है ब्रह्म मुहूर्त में। काउंट माई ब्लेसिंग्स जिन्होंने लिख ली है बहुत अच्छा है, जिन्होंने नहीं लिखी है वो जल्दी से सेशन के बाद लिख लेंगे। और आज की जो हमारी असाइनमेंट है, अच्छा काउंट माई ब्लेसिंग्स लिखेंगे, फिर एक बार पढ़ेंगे, फिर 3 बार थैंक यू बोलेंगे, हर एक बार, हर एक ब्लेसिंग पढ़ने के बाद। फिर आज की जो हमारी असाइनमेंट है वो लिखने की नहीं है, वो आज सिर्फ बोलने की। एक आज का दिन सी बेसिकली आज ये कैसे रन करता है, जब हम सारे दिन इतने ग्रेटफुल होंगे, जब हम सारे दिन हमारी वाइब्रेशन इतनी हाई होगी, हम वो जोन में रहेंगे जब हम बहुत बहुत ग्रेटफुल हैं, तो अपने आप, वो कहते हैं लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, हम अपने आप अपनी अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करेंगे। तो आज का दिन है, प्लीज देखिएगा कि ज्यादा गुस्सा मत करिए, अननेसेसरीली आपको गुस्सा भी आएगा तो बहुत ग्रेटफुल हो जाइए उस आदमी के लिए, जो भी चीज आपको गुस्सा दिला रही है। अपना आज आप वाइब्रेशन चेंज कर लीजिए, तुरंत की तुरंत थैंक यू में आ जाइए। फिर हम देखते हैं कि कितना हमको फर्क आता है। बहुत रियली ये प्रैक्टिस शिद्दत से करने से बहुत फर्क आता है। और आज का दिन, पूरा दिन करते रहिए, जो जो चीज भी आपको हेल्प करती है, इवन आपके कपड़े भी, बिकॉज आपको अगर आप ढंग से कपड़े भी नहीं पहनकर जाओगे, अच्छे नहीं लगोगे, तो आप में वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, है ना। सो जो जो चीजें भी आपको हेल्प करती हैं, आज सबके लिए ग्रेटफुल होना है। और फिर हम देखेंगे कि हमें कितना, मतलब हाउ मच वी हैव प्रॉस्पर्ड एंड प्रोग्रेस। आज देखना शाम तक ही आपको कितने सारे कॉल्स और कितनी सारी चीजें, कितने सारे अपॉर्चुनिटीज आ जाएंगी। So thank you so much. Now Priya will be taking the power of subconscious mind. Priya, should I share the screen now? मैं share कर दूँ ना? Yes, ma'am, please do. And thank you Priya so much. मेरा वो चला गया था internet connection, but you took over. Thank you so much. Anyone, is Deepti ma'am there? Would she like to add something? I think she had already boarded, ma'am. तो मुझे लगता है कि take off ठीक है, ठीक है। तो अभी प्रिया पहले ले लेती हैं, फिर किसी को कुछ भी पूछना हो या शेयर करना हो तो उसके बाद हम ले लेंगे, आफ्टर वी रीड दिस बुक। ठीक है, Ma'am, हाँ। thank you so much, ma'am.
सर फॉर द लास्ट प्रैक्टिस ना आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोगों को ना ये ऐसा लगता है ना कि दिस इज नॉट द राइट जॉब फॉर मी, आई कैन डू समथिंग एल्स इन माय लाइफ. So in order to get another opportunity, in order to get any new opportunity in your career, you must first give respect and love and gratitude to your present job. Whatsoever you are doing, you have to give lots of love and gratitude to that work. Then only new opportunities will rain on us, you know. So this is a very important thing, that you have to feel gratitude for whatever job you have, whatever sort of temperament or your boss has, or your colleague. Even if your colleagues are not cooperating with you, then also you have got many practices in which Rhonda Byrne explains us that how can we win other people's heart, right? So इस तरह से we have to be grateful for our present job. अभी जो हम कर रहे हैं उसके लिए हम grateful होंगे, तभी हमारे पास नई और भी ज्यादा opportunities आती रहेंगी. So yeah, this I wanted to add from the last from Rhonda Byrne's chapter, the works like magic, and it's really works like magic for me. It has worked a lot, and for ma'am and for everyone, like it works actually like magic. So yeah, let's come back to this particular. And sorry, I'll just add one more thing. आप आज दिन भर में मतलब आपको आज प्रैक्टिस लिखने की नहीं है, पर फिर भी 10 ग्रेटिट्यूड अपने वर्क के लिए लिख लीजिए. माय वर्क इज गेटिंग बेटर एंड बेटर. आई एम गेटिंग वंडरफुल अपॉर्चुनिटीज टू ग्रो. My clients are so happy with me. I get wonderful opportunities in my work. My communication skills are getting better and better. All my clients love me. I'm getting, मतलब बार बार ही बोलते रहिए कि I get wonderful opportunities in my work. My work is getting better and better. I get so much of appreciation, recognition in my work, and actually my work has changed my life really. मेरे वर्क ने मैंने थोड़े साल पहले ही अपना न्यूट्रिशनिस्ट का कोर्स करा है और मैं अभी प्रैक्टिस कर रही हूँ. My work has really changed my life really. From nobody, from a person who was not existing, literally I've come in the limelight because of my work. My health, my fitness also improved. So for me, my work is like मैं जितना भी gratitude करूंगी उतना कम है. My work has given me so much in my life. मुझे इतनी अपॉर्चुनिटीज मिली हैं, आई कांट इवन टेल यू. सो प्लीज आज का दिन है, अपने जो भी आपकी करेंट वर्क है उसके लिए आप बहुत ग्रेटफुल रहिए, जैसे प्रिया ने बोला है, एंड यू विल सी हाउ मच अपॉर्चुनिटीज यू गेट. हाँ जी प्रिया, ओवर टू यू. Yeah, thank you so much, ma'am. So yeah, for all the newcomers, we are reading this second book. The name of the book is The Power of Our Subconscious Mind, written by Dr. Joseph Murphy, who has been a great philosopher, a great psychologist in his own sense. वैसे he was a pastor by profession, but he went and he empowered the people's life. वो हर एक इंसान को अपना ट्रू जो पावर है हमारी, जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड की पावर है, उससे उन्होंने उनको अवगत कराया है. So here we have studied a lot about the things, particularly ये वाला chapter is on forgiveness, that how can we forgive others and forgive us. So it's okay to we are a soul journey, right? हम लोगों की सारों की एक soul journey है, but it is not a solo one. ये हमारे अकेले की journey नहीं है. Many people will come into our life who will bring us a good names, वो जो हमें बहुत प्यार करेंगे, हमारे लिए बहुत कुछ करेंगे. लेकिन at the same time we will be getting a few people who will hurt us also, and that's okay. ये एक ट्रेन की तरह है ना, एक ट्रेन जर्नी की तरह है, जिसमें बहुत सारे लोग आएंगे जाएंगे हमारी लाइफ में, बट हम लोगों ने वो जर्नी जो है ना बहुत अच्छे से अपनी स्पेंड करनी है. और उसके लिए जो अच्छा बोलते हैं हमें, उन्हें तो अच्छा बोलना ही है हमें, बट जो हमारे साथ कुछ इधर उधर की बातें, कुछ हमें हर्ट भी करते हैं ना, उनको भी हमें फॉरगिव करके आगे बढ़ते जाना है. So this is the thing in which Dr. Murphy wants to explain us. And कल मैम ने जैसे बताया था, yesterday we studied about how we can check whether we are in peace with ourselves or not, right? वो ऐसे टेस्ट था. Just suppose we have a particular person, किसी भी इंसान ने हमें कोई बहुत हर्ट किया हो, right? तो हम लोगों को कैसे पता चलेगा whether we are at peace with him or not? Just close your eyes and think about the person. अगर उनके उस पर्सन के जो यादें हैं,
उससे आपको जरा सा भी पेन नहीं होता या जरा सा भी ऐसा सेंसेशन नहीं होता, आपकी आंखों में आंसू नहीं आते, that means that you are at peace with him now. And that is the very thing that will bring happiness, more opportunities, and get you closer to your dreams. है ना? तो अगर हमारी लाइफ में कोई भी ऐसी चीज है जिसके कारण हमने उस इंसान को फॉरगिव ना किया हो, तो उसका इतना नुकसान नहीं होगा जितना हमारा हो जाएगा, बिकॉज दैट थिंग विल ब्रिंग अस वेरी वेरी। रिया दी आप म्यूट पे हो। या म्यूट हो गया। This is very important. I just got a call, that's why I got disconnected for a second. So yeah, so giving is very important. So Meetu ma'am will be reading today, right? Yeah. Ma'am, please start. Summary of your aids to forgiveness. Point number 1. God or life is no respecter of person. Life plays no favorite. Life or God seems to favor you when you align yourself with the principle of harmony, health, joy, and peace. Point number 2. God or life never sends disease, sickness, accident, or suffering. We bring these things on ourselves by our own negative, destructive thinking, based upon the law, as we sow, so shall we reap. Point number 3, your concept of God is the most important thing in your life. If you really believe in a God of love, your subconscious mind will respond in countless blessings to you. Believe in a God of love. Point number 4, life or God holds no grudge against you. Life never condemns you. Life heals a severe cut on your hand. Life forgives you if you burn your finger. It reduces the edema and restores the part to wholeness and perfection. Point number 5, your guilt complex is a false concept of God and life. God or life does not punish or judge you. You do this to yourself by your false belief, negative thinking, and self-condemnation. Yeah, just a moment, ma'am. Just a moment. Yeah, so हमारी ये बहुत पुरानी आदतें होती हैं कि हम लोग अपने लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उसके लिए बहुत आसानी से वी ब्लेम अदर्स। और एक इंसान को हम पढ़ नहीं पाए ना, क्योंकि मेरे भाई ने मुझे पढ़ने नहीं दिया, वो सारा दिन मुझे डिस्टर्ब करता रहा। लेकिन नहीं, उसने डिस्टर्ब नहीं किया, आपका खुद का मन नहीं कर रहा था पढ़ने का। अगर आपका मन होता ना तो आप दूसरे रूम में जाके पढ़ लेते। ठीक है, कई बार भी कंप्लेन कि मैं ऑफिस आज इसलिए लेट पहुंची क्योंकि मैं रात को जल्दी नहीं सो पाई, रात को लेट हो गई। तो अगर आप रात को लेट हुए हैं ना, वो भी आपके कारण ही आप लेट हुए हो। यू नो दैट आई शुड रीच माय ऑफिस एट टाइम। मुझे अपने ऑफिस के टाइम से 5 मिनट पहले पहुंचना है। ये जानते हुए भी अगर आप लेट सोए हो तो दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गेट अप इन टाइम टुमारो, राइट? सो हम बहुत आसानी से अपने सर्कमस्टांसेस को, अदर पीपल को, और कोई नहीं मिला तो भगवान को हम लोग दोषी ठहरा देते हैं कि भगवान के कारण ये हुआ है। क्या भगवान, मतलब मैंने तो आपसे प्रे किया था बट यू डिडंट आंसर मी। नो, वी डोंट गॉड। ठीक है, भगवान हमारे सपोर्ट करने के लिए है हमारे साथ, बट वी शुड नेवर ब्लेम गॉड। आपने वो वाली मूवी भी देखी होगी शायद, वो ब्रूस ऑलमाइटी है। इट्स अ वेरी वंडरफुल मूवी जिम कैरी की। तो उसमें वो उनको ना, वो भगवान से बहुत ज्यादा कंप्लेन करता था, यार ये नहीं है मेरे पास, भगवान क्या करते हो। तो भगवान ने क्या किया कि उसको अपनी पावर्स दे दी कि ठीक है जिम बेटा, मैं तुम्हें 1 महीने के लिए अपनी पावर्स देता हूँ। Now you solve your problems and you solve other people's problems also. So last तक जाके उसको समझ में आ जाता है कि यार भगवान का जॉब कितना मुश्किल है। मतलब it is very like tough job. वो मतलब हम किस तरह से औरों को ब्लेम कर दें, उसका वो ब्लेम करना बहुत आसान है, but it is us who is responsible for each and everything. So अगर हम किसी इंसान को forgive नहीं कर पा रहे हैं ना, so that उस person से ज्यादा हमारा अपना नुकसान तो है ही। तो उसके लिए we have to clear our mind of that person. See, forgiving is not forgetting. Okay, you are forgiving that person. You have forgiven him for his or her deed, whatever he did to you. But you are not forgetting that moment. आप भूल नहीं रहे हो, आप उसको बस माफ कर रहे हो। माफी देना जो है ना, वो बहुत बड़ी एक नियामत होती है। एंड आप माफी देने वाला जो है ना, वो बहुत ज्यादा ऊपर हो जाता है। और वो किसके लिए ऊपर होता है ना? उसकी अपनी लाइफ जो है, वो लाइफ जर्नी स्मूथ हो जाती है। जब आपकी लाइफ में किसी के लिए भी कोई ग्रज नहीं होगा, किसी पर्टिकुलर पर्सन की याद से आपके मन में कोई
पेन, कोई व्यथा नहीं होगी, है ना। आप किसी इंसान को, मान लो किसी इंसान के साथ यू आर नॉट इन वेरी गुड टर्म्स विद दैट पर्सन, एंड उसको फोन करने में आपको क्यों हिचकिचाहट नहीं होगी, आपको ये नहीं लगेगा कि वो कुछ और बोल देगा और मैं फिर से डाउन हो जाऊंगी। वो वाला जब सिचुएशन जब तक आपके लाइफ में है ना, तब तक यू हैव टू फॉरगिव दैट पर्सन, यू हैव टू प्रैक्टिस द मेडिटेशन फॉर फॉरगिवनेस। बहुत अच्छे से डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने वो समझाया है, हम लोग हमारे पास पीछे उन्होंने बहुत अच्छी एफर्मेशंस भी दी थी उसके लिए। तो इसकी सर ये 5 पॉइंट्स में जो समराइज करना चाहते हैं मर्फी जी, वो यही बोल रहे हैं कि हमें किसी और को, किसी और के एक्ट के लिए किसी थर्ड पर्सन को ब्लेम नहीं करना है, या फिर सर्कमस्टांसेस को या गॉड को ब्लेम नहीं करना है। वी हैव टू टेक चार्ज ऑफ आवर माइंड, वी हैव टू बी द ड्राइवर ऑफ आवर माइंड, राइट। हमने अपना जो माइंड है भगवान के हाथ में नहीं दिया हुआ, भगवान हमारी हेल्प करने के लिए है। बिकॉज डॉक्टर जोसेफ मर्फी बीइंग अ पास्टर, तो उन्होंने काफी ये स्पिरिचुअलिटी में जाकर उन्होंने समझाया है, बट एक्चुअली द गॉड, द व्हाटएवर यू कॉल द यूनिवर्स, द सबकॉन्शियस माइंड इज योर गॉड, and you can tame your subconscious mind to forgive that person and to have a blissful life. You can never have a blissful life unless you have cleared all your blocks of the mind. Okay, जो हमारे माइंड में किसी और पर्सन के लिए कोई नेगेटिव थॉट है, या उसने कुछ बुरा हमारे लिए कर भी दिया है, तो उसके लिए ग्रजेस अगर अभी तक भी है ना हमारे लाइफ में, तो फिर हमारी लाइफ कभी भी ब्लिसफुल नहीं हो सकती है। ब्लिसफुल लाइफ अगर हमारी होगी तभी हम लाइफ वर्ड सोचेंगे, तभी हम अपनी जर्नी को और भी ज्यादा खूबसूरत बना सकते हैं, तभी हम अपनी ड्रीम्स तक पहुंचेंगे। एंड इट्स वेरी इजी, ठीक है, अपने ड्रीम्स तक पहुंचना इजी है, फॉरगिवनेस करना मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। एक हैबिट जो हमारी बन गई है, वो उस हैबिट से परे हम लोगों को थोड़ा सा मेडिटेशन करके, थोड़ा सा अपने माइंड को टेम करके, और हमें पता ही है कैसे करना है, स्लीपी ड्राउजी स्टेट में करना है, हमने मॉर्निंग में करना है, रात को कीजिए, लेकिन हमारे माइंड को क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। लोग कहते हैं ना कि समटाइम्स वी से कि पर्टिकुलर पर्सन इज एन, इट सीम्स लाइक एन एनलाइटेंड सोल, है ना, वो एनलाइटेंड है, उसमें इतनी पावर है, उसमें इतना रेडियंस है कि वो सबको माफ कर देता है। तो एक्चुअली वो उसके सबकॉन्शियस माइंड की पावर है, और वो पावर कैन बी अटेन्ड बाय अस आल्सो। हमें भी वो पावर मिल सकती है, वो हमारे पास है ही एक्चुअली। वो हमें हनुमान जी की तरह अपने आप को याद दिलवाना पड़ेगा कि ये हमारी पावर है, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड की पावर है। उसको याद करने के लिए हमें क्या करना है, उस पर्टिकुलर टाइम पे जाके उस पर्टिकुलर पर्सन के प्लेस में, you have to place yourself in that person's space, एंड उसके बाद आप सोच सकते हैं कि क्यों उसने ये वाली पर्टिकुलर सिचुएशन जो है क्यों की होगी, ये वाली गलती जो है उन्होंने क्यों की होगी, या उन्होंने किस तरह आपको जो हर्ट किया है उसके पीछे भी कोई रीजन रहा होगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग जब सोचेंगे ना, तब हम लोग अपने माइंड को क्लियर कर सकते हैं, हम उनको फॉरगिव कर सकते हैं। भूलेंगे तो नहीं, हम अगर भूलेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा, हम लोगों ने लर्निंग नहीं ली है। भूलना इज अनदर थिंग, भूलने को नहीं बोल रही मैं, जस्ट उनको माफ करने के लिए बोल रही हूँ, वो भी हमारे फेवर के लिए। और एक और बात ध्यान रखना, मैंने पढ़ा भी था बुक में, कि जब हम ये फॉरगिवनेस मेडिटेशन करते हैं ना, जब हम किसी को फॉरगिव करते हैं, तो पता नहीं कैसे वो, मतलब मैंने खुद ने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस भी किया है इवन, क्योंकि हम लोग रॉन्डा बर्न की जो एक वो प्रैक्टिस है ना, कि हम उनको फॉरगिव करने के लिए उनके अच्छे अच्छे पॉइंट्स हम लोग लिखते हैं, मन से लिखते हैं, कि उनके अंदर पॉजिटिव पॉइंट जो होते हैं ना वो लिखते हैं। तो ऐसा करने के बाद पता है क्या होता है, आई डोंट नो, आउट ऑफ समवेयर, आउट ऑफ नो ब्लू स्काई, वो बंदा फोन ही कर लेता है, उसका अपने आप फोन आ जाता है। तो आई वाज लाइक रीडिंग एन एक्सपीरियंस फ्रॉम अ पर्टिकुलर बुक, आई जस्ट रिमेंबर द नेम ऑफ द बुक। तो उसमें वो इंसान जो है, वो एक पर्टिकुलर पर्सन है, उनको अपने भाई के साथ काफी थोड़े से ग्रजेस थे, बाहर की स्टोरी है। तो उसकी लाइफ की स्टोरी थोड़ी सी ना ऐसी थी, थोड़ी सी डिस्ट्रक्टेड थी, थोड़ा डिस्कॉर्डियल रिलेशन था उसके भाई में, उसका भाई उसको काफी बुली करता था, इवन उन्होंने उसको सेक्सुअली असॉल्ट भी किया था। तो एक बार क्या होता है ना, वो फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करने की, फॉरगिवनेस मेडिटेशन की प्रैक्टिस करने के लिए किसी के पास आया होता है, लाइफ कोच के पास आया होता है, विशन लखियानी है, हम लोग उनको जानते भी हैं। तो उनके पास वो आया होता है, तो वो उनको बताता है कि आई एम लाइक, आई जस्ट गॉट अ मैसेज फ्रॉम माय ब्रदर। सेड ओके, वाओ, दैट्स ग्रेट दैट यू हैव गॉट अ मैसेज फ्रॉम माय ब्रदर। तो सेड नहीं, मैंने उस भाई से अपने 3 साल से बात नहीं कर रखी है, और उनसे मुझे मैसेज आया है अचानक से। एक्चुअली क्या था ना, कि वो बंदा जो है, वो अपने भाई के पॉजिटिव पॉइंट्स लिख रहा था, वो अपने भाई के लिए फॉरगिवनेस वाली मेडिटेशन कर रहा था, एंड उसके भाई को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था।
उसका भाई was totally oblivious of what he was going through, what his brother is going through, but he calls him up, the brother calls him up, जो बुली करता था ना, उसने अपने भाई को फोन किया और उसने उसको सॉरी बोला कि सॉरी भाई, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलती किया एंड आई एम रियली आई एम सॉरी फॉर दैट। तो जस्ट थिंक कि वो उसके भाई को पता नहीं था, लेकिन ही वाज प्रैक्टिसिंग फॉरगिवनेस फॉर हिम, बट उसका भाई खुद कॉल करके उसको बता रहा है कि मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। तो ये चीजें जो है ना, रियली ये मैजिकल एंड मिराक्युलस है। इसको करने से आप प्लीज ये प्रैक्टिस करके देखना मत, मतलब अपने मन में डू नॉट होल्ड एनी ग्रज फॉर एनी पर्सन इन योर लाइफ, एंड आपको इतना सुकून की सांस आएगी ना, आपको रातों को नींद बहुत अच्छी आएगी, आपको हर जगह आपको मतलब नियामत ही नियामत आपके ऊपर बरसने लग पड़ेगी। वी हैव टू प्रैक्टिस दिस फॉरगिवनेस मेडिटेशन, आई मीन forgiveness thing for like it should be a ritual। अगर कोई है ना, उसको माफ कर दीजिए। माफ करने का मतलब वही अगेन वो नहीं है कि forget करना, ठीक है, बस वो चीज आपको, आपने उस चीज को फील करना है कि उसने इस चीज को किसी पर्टिकुलर रीजन से किया होगा, है ना। तो ये एक इट रियली वर्क्स वंडर्स इन आवर लाइफ। सो यस मैम, नीतू मैम, वी कैन go forward। Point number 6. God or life does not condemn or punish you. The forces of nature are not evil. The effect of their use depends on how you use the power within you. You can use electricity to kill someone or to light the house. You can use water to drown a child or quench his thirst. Good and evil come right back to the thought and purpose in man's own mind. Point number 7. God or life never punishes. Man punishes himself by his false concepts of God, life, and the universe. His thoughts are creative and he creates his own misery. Point number 8. If another criticizes you and these faults are within you, rejoice, give thanks, and appreciate the comments. This gives you the opportunity to correct the particular fault. Point number 9. You cannot be hurt by criticism when you know that you are master of your thoughts, reaction, and emotion. This gives you the opportunity to pray and bless the other, thereby blessing yourself. Yes, just a Point moment, number- ma'am. Just a moment. Yes, so what Dr. Murphy wants to say कि हमारे जैसे हमने बताया ही है कि किसी की क्रिटिसिज्म से आपको, मान लीजिए कोई क्रिटिसाइज कर रहा है, आपका बॉस आपको बोल रहा है कि दिस पर्टिकुलर वर्क इज नॉट अप टू द मार्क, यू गो एंड राइट दैट अगेन, राइट। कोई पर्टिकुलर आपने स्क्रिप्ट लिखी है, कोई क्लाइंट आ रहा है, तो आपने कोई प्रेजेंटेशन बनाई है और आपका बॉस आपको बोल रहा है कि नहीं, ये प्रेजेंटेशन अप टू द मार्क नहीं है, तो आप इसको दोबारा से करके लाओ। तब क्या होगा, आपके मन में ना तरह तरह की भावनाएं आएंगी कि क्या यार, मतलब फालतू में बोलते रहते, इतना अच्छा तो बनाया है मैंने भाई, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वी समटाइम्स फॉरगेट कि ये जो पर्सन है ना, यही हमें कई बार अप्रिशिएट भी करते हैं, राइट। तो अगर वो आज मेरी बॉस के पोजीशन में बैठे हुए हैं, तो वैसे ही नहीं बैठे हुए, ही हैज गॉट सम अ ब्यूटीफुल माइंड, और उनके पास एक्सपीरियंस होगा, तभी वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से हमें हमें और भी ज्यादा अच्छा बनाने के लिए, हमारे प्रेजेंटेशन को और भी ज्यादा अच्छा बनाने के लिए वो हेल्प करना चाहते हैं। एंड दैट इज वाई ये चीजें, और ये हमारा एसिड टेस्ट होता है एक तरह से, कि आपका जो नॉलेज है, आपने जो इतने सालों तक कॉलेज में और अपने वर्क लाइफ में जो भी आपने एक्वायर किया है, उसका टेस्ट भी तो है ना, कि आपने कितने अच्छे से अपनी पढ़ाई को करा है। अब आप उसका ये जो है ना, आप अपने माइंड को, आप बिजनेस स्कूल्स में ना ये बहुत ज्यादा अच्छे से सिखाया जाता है कि आप अपने माइंड को किस तरह से टेम कर सकते हो, और वो प्रैक्टिकल लाइफ में आके आपको और भी अच्छे से पता चलता है। सो क्रिटिसिज्म को वेलकम कीजिए। अपने आप को, क्रिटिसिज्म, अपने आप के लिए क्रिटिक बनेंगे ना आप, तो आप अपने आप को और भी अच्छे से सुधार पाएंगे। जैसे मैम अपने मेंटोर्स के बारे में बताती है ना, दीप्ति मैम की, उन्होंने मतलब ड्यूरिंग हर पीएचडी उनके जो मेंटोर्स थे, उनको बार बार रिपीटेडली कह रही थी मैम कि वो फाड़ के फेंक देते थे अपने सामने कि दोबारा से करके लाओ, दोबारा से करके लाओ, दोबारा से करके लाओ। एंड इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ दैट शी इज अ वंडरफुल राइटर नाउ, शी इज अ वंडरफुल ऑथर। और कहीं पर जाने के लिए, कहीं भी उनको स्पीच देने से पहले उनको कुछ भी प्रिपेयर नहीं करना पड़ता। वो क्यों नहीं करना पड़ता? वो इसलिए कि उनकी लाइफ में इतने टफ मेंटोर्स आए थे, या वो इतने अच्छे क्रिटिक्स थे, जिसके कारण उन्हें ये प्रेरणा मिली है कि मैं किस तरह से अपने आप को और भी ज्यादा सुधार सकती हूँ, राइट। तो कई बार हमारे बॉसेस या हमारे पेरेंट्स या हमारे फ्रेंड्स क्रिटिसिज्म के उस हद तक चले जाते हैं कि जो हमें बहुत ज्यादा हर्ट भी कर देते हैं।
कई बार कहते हैं ना, जैसे हमारे पुराने टाइम पे ऐसा होता था ना कि पेरेंट्स यूज्ड टू हिट आल्सो, कि उनको लगता था कि बच्चे को मारने से सब कुछ हो जाएगा ठीक, लेकिन आज हम लोग वो नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे में अवेयरनेस आ रही है। लेकिन अगर हम अपने मन में यही अगर ग्रजेस लेते रहे कि मम्मा आपने तो मुझे मारा था तब, अब तो आप मुझे अपने बच्चे को जब मैं मारने जाती हूँ तब तो आप मुझे रोकते हो कि नहीं बेटा नहीं मारना उनको, लेकिन आपने तो बहुत मारा था मुझे, आपने तो मेरी बहुत पिटाई कर रखी है। तो उसके लिए यार मतलब वी हैव टू थिंक दैट कि आपकी मम्मा का जो वो स्टेज है ना, वो वाला जो टाइम था वो अलग टाइम था, आज की दुनिया अलग है। तब दे डिड नॉट हैव सो मच एक्सेस टू द पेरेंटिंग आर्टिकल्स, और मीडिया इतना ज्यादा हावी नहीं था हमारे पर, इतना ज्यादा सोशल मीडिया नहीं था, ना ही उनके पास इतने गैजेट्स थे कि वो अपने लाइफ को इजी बना सकते थे। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, वो भी पहली बार पेरेंट बने थे ना, तो उन्होंने भी उनके साथ जैसा हुआ उन्होंने वो आपके साथ किया। लेकिन ये याद रखना कि उन्होंने जो आपको मारा था, ये एक्चुअली मैं अपने आप को बोल रही हूँ ये, कि उन्होंने जो पिटाई की थी आपकी, कभी उनको हिट किया होगा उन्होंने आपको, तो उसका कारण था वो हमें और भी अच्छा बनाना चाहते, क्योंकि उनका थॉट प्रोसेस ही ये था कि मारने से वो ठीक हो जाएगा बच्चा, वो हमारा भला ही करना चाहते थे ना। सो इंस्टेड ऑफ कैरिंग दैट ग्रज कि मम्मा आपने मुझे इतना मारा था, इतनी पिटाई करी, वी हैव टू थिंक कि वो जो मारा था ना, वो जो मम्मा ने हमें करेक्ट किया था कि बेटा सीधे चलना है, टेढ़े मेढ़े नहीं चलना है, उसके कारण आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन आती है आप उसको फेस करने के काबिल बनते हो। सो फॉरगिव हर, आप उसको समझाने की कोशिश करें कि क्यों, मतलब जिस भी इंसान के लिए कोई भी ग्रज हो, हमारे पेरेंट्स के लिए भी बहुत बार होता है। आई नो, लाइक मेरा मतलब मैं इस बात को बहुत अच्छे से जानती हूँ, यू ऑल नो मी राइट, आपको कभी लगता होगा ना, मतलब बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि प्रिया कितनी सुलझी हुई है ये वो, लेकिन आज जो मैं हूँ ना वो अपने पेरेंट्स की वजह से हूँ, एंड आई मस्ट से दैट मुझे बहुत, मेरी बहुत पिटाई होती थी। सो मतलब ये, इसका मतलब ये नहीं कि मैं पिटाई को प्रमोट कर रही हूँ, मैं इसलिए उनको माफ कर रही हूँ, लेकिन मेरे मन में कोई भी ग्रजेस नहीं है अपने मम्मी के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि दैट हैज हेल्प मी। हम लोग बच्चों को एक कवरिंग के अंदर रखते हैं, कंफर्टेबल सिचुएशन के अंदर रखते हैं, बहुत अच्छी बात है, वो बच्चा का कंफर्ट जोन बन जाता है, लेकिन कल को उसने बाहर जाना है, कॉलेज में जाना है, उसने अपने वर्क में जाना है, तो तब उसको सारे के सारे ऐसे फेवरेबल सिचुएशंस नहीं मिलेंगी, तब सभी उसको गोदी में उठा के नहीं चलेंगे। he has to fight for his right there also, right? तो इसलिए हम लोगों को कई बार सिखाने के लिए उनको अच्छी मेंटोरिंग करनी पड़ती है, लेकिन बच्चा जो है, हम जैसे बच्चे जो है ना, हम लोग ग्रज कैरी करते हैं। सो आई जस्ट वांट टू से दैट वी डू नॉट हैव टू कैरी एनी ग्रज, माफ करें और उस चीज को समझने की कोशिश करें, एम्पैथी लाए, हम लोग कंपैशनेट हो, हम लोग समझें कि उन्होंने क्यों ये करा है हमारे साथ, या किसी की कोई भी XYZ पर्सन हो सकता है, उनको फॉरगिव करना बहुत ज्यादा इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि हम अपने लाइफ में और भी अच्छे से इवॉल्व होकर आए। यस मैम, मीतू मैम प्लीज कंटिन्यू। Meetu, please unmute yourself. मैं मे बी हर नेटवर्क कनेक्शन इज नॉट वर्किंग, और ऐसा कुछ हो सकता है। सो क्या मीतू, हाँ, मीतू अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, एक्चुअली उसकी वहां से आवाज आ रही थी, मैंने इसको म्यूट कर अच्छा, लिया था, मैं देखती हूँ। In the meantime, Priya, you want me to read till the time Meetu comes? यस मैम प्लीज डू। हम कौन से इसमें थे? पॉइंट नंबर 9 में? 10 में होंगे शायद, 9 में ही होंगे हम। हाँ या 10 में, 10। पॉइंट। Point No, number 10, point can I? number 9 Yes, number. Meetu, please take over. हाँ जी, Meetu. When you pray for guidance and right action, take what comes, realize it is good and very good, then there is no cause for self-pity, criticism, or hatred. Point number 11, there is nothing good or bad, but thinking makes it so. There is no evil in sex, the desire for food, wealth, or true expression. It depends on how you use these urges, desires, or aspiration. Your desire for food can be met without killing someone for a loaf of bread. Point number 12, resentment, hatred, ill will, and hostility are behind a host of maladies. Forgive yourself and everybody else by pouring out love, life, joy, and goodwill to all those who have hurt you.
Continue until such time as you meet them in your mind and you are at peace with them. Point number 13. To forgive is to give something for. Give love, peace, joy, wisdom, and all the blessings of life to the other until there is no sting left in your mind. This is really the acid test of forgiveness. Yes, ma'am, just a moment. Yeah, so Dr. Murphy says कि अगर आपके मन में कोई इस तरह की भावना है ना किसी और के लिए, तो उसका मतलब our thought process is corrupt in his case. Like मुझे हमारा चश्मा ही गलत है जो हम उसको उस तरह से देख रहे हैं ना. We have to look back at the event and उसके बाद हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि क्या वो रीजन रहे हैं, है ना. तो इसके लिए he says that हम लोगों को अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू बनाने से पहले, एक जजमेंट पास करने से पहले, we have to go through that, like we should go through that situation कि क्यों ऐसा हुआ होगा. I am not saying कि that person has not done anything bad to you. ये बिल्कुल भी नहीं कह रही है. हो सकता है उन्होंने बहुत ज्यादा बुरा किया हो जिसको सहना बहुत ज्यादा मुश्किल रहा होगा, उसको भूल पाना नामुमकिन होगा, है ना. लेकिन स्टिल अगर वो जो ग्रज हम कैरी कर रहे हैं ना, उसके लिए हमें पेन ही हो रहा है ना. अगर कोई वुंड है हमारा, कोई हमें चोट लग गई है, कोई भी वुंड है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसके लिए उसको जड़ से मिटाने की कोशिश करते हैं ना कि हम उसको कुरेदते हैं. और तो उनको उन यादों को उस चीज के लिए रिजेंटमेंट रखना, उस पर्सन के लिए हेट्रेड फीलिंग रखने से क्या हो रहा है ना, हम उस घाव को और भी ज्यादा कुरेद रहे हैं, जो कि हमने नहीं करना है. जिसके साथ हमने पीस करना है, कि पीस में रहना है, हार्मनी में रहना है. तो इसके लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉरगिव अदर्स. एंड वो जो उन्होंने बोला था कि अगर आपके मन में कोई, आपको आज बहुत ही आप डाइट पे हो और आपको ना एक चीट मील, आपको एक केक खाने का मन कर रहा है, तो इट्स ओके. डू नॉट स्टार्व योरसेल्फ. आपको भूखे रहने की जरूरत नहीं है. ठीक है, अपना पोर्शन साइज कंट्रोल करके हम अपने लिमिट में खाइए. या इवन सेक्स इज नॉट इवल जैसे वो बता रहे हैं. और इसके अलावा जैसे पहले के टाइम पे हम आजकल सोचते हैं ना कि इंडिया में कि ऐसा होगा, लेकिन आपको पता है यूरोप में भी पहले ऐसा था कि जो शॉर्ट स्कर्ट्स पहनना, इवन विमेन डिड नॉट हैव द राइट टू वोट. बहुत बाद में जाकर अमेरिका में भी विमेन के लिए राइट हुआ था कि लाइक टू वोट करने का जो राइट है ना, डेमोक्रेसी की बहुत बाद में उनके लिए भी आया था, राइट. तो ऐसा नहीं है कि हमारे यहीं पर होता है. ग्लोबली जब तक वहां पर 100% पॉपुलेशन जो है ना, ऑलमोस्ट 100% पॉपुलेशन एजुकेटेड नहीं हो जाती है, अपने राइट्स एंड ड्यूटीज के बारे में नहीं जानती, तब तक हमारी डेवलपिंग इकोनॉमी में ऐसा ही चलता है. एंड वी आर गेटिंग बेटर एंड बेटर एवरी डे. सो हम लोगों को ये थिंकिंग के साथ हम लोगों को वी हैव टू कम इन टर्म्स विद दैट. अगर कोई रोक रहा है हमें कि ये नहीं करना है, तो देयर मस्ट बी अ रीजन बिहाइंड दैट, है ना. इसके लिए इस बात को डॉक्टर मर्फी समझा रहे हैं हमें. और वो एसिड टेस्ट ऑफ फॉरगिवनेस जो है, वो तो हम लोगों ने कल पढ़ा था कि एक आपका अगर वुंड है आपका, उसको आप देखो कि किस तरह से वो, अगर मान लीजिए वो, शायद मुझे लगता है नेक्स्ट वाला आएगा. मैम इसको पढ़ लीजिए, फिर उसको हम समझते हैं हम लोग 14th वाला. या Point number 14. Let us suppose you had an abscess in your jaw about a year ago. It was very painful. Ask yourself if it is painful now. The answer is in the negative. Likewise, if someone has hurt you, lied about and vilified you, and said all manner of evil about you, is your thought of that person negative? Do you sizzle when he or she comes into your mind? If so, the roots of hatred are still there, playing havoc with you and your good. The only way is to wither them with love by wishing for the person all the blessings of life until you can meet the person in your mind and you can sincerely react with a benediction of peace and goodwill. This is the meaning of forgive until 70 times 7. yes, thank you so much, Meetu ma'am, for reading so beautifully, so coordinating so well. For like, it's wonderful to have you. So yes, so Thank he wants to say कि अगर कोई एब्सेस हो जाता है आपके गम में या फिर आपके कहीं भी बॉडी में, एब्सेस का मतलब होता है कई बार ना वो फोड़ा सा होके उस पे पस आ जाती है ना. तो जो बैड मेमोरीज है या हमारे साथ किसी ने कोई ऐसा हर्टफुल चीज की है, उसके लिए वो एक उस तरह के फोड़े की तरह है हमारे लाइफ में, है ना. तो सर्जन क्या करता है, सर्जन उसकी IND करता है. IND का मतलब होता है इंसिजन एंड ड्रेनिंग. उसको इंसाइज करेंगे, उसको कट करेंगे. अगर वो बहुत ज्यादा पेनफुल है ना, उसको इंसाइज करेंगे, उसमें से जो भी म्यूकस होता है या जो भी इस तरह का चीज होता है ना, पस होती है,
उसको ड्रेन करेंगे, उसको निकालेंगे, फिर उसको हम लोग उसके ऊपर पट्टी करेंगे, करते हैं, मतलब सर्जन जैसे करते हैं, और उसके साथ आपको एंटीबायोटिक्स भी देंगे ताकि वो फर्दर कोई और, मतलब वो जो आराम से वो जो वुंड है ना वो हील हो जाए. दैट इज अ फिजिकल थिंग. व्हाट यू कैन डू मेंटली इज टू गो बैक टू द सिचुएशन, जैसे कि हमने पहले भी समझा इस चीज को, कि तो गो बैक टू द सिचुएशन. उस पर्टिकुलर बहुत पेनफुल रहेगा उस चीज को याद करना. अगर कोई मान लीजिए कोई आपके साथ कोई मोलेस्टेशन हुआ है और उस चीज को, उस पर्टिकुलर मोमेंट को याद करना बहुत मुश्किल होता है. आई कैन अंडरस्टैंड दैट. आप ये देखो कि मतलब हमारे लाइफ में ये बीइंग अ सोशल एनिमल, तो जिस तरह से हमारे अच्छे अच्छे काम हुए हैं, हमारे साथ अच्छी अच्छी बहुत सारी बातें हुई हैं, उस तरह से हर्टफुल बातें भी हुई हैं हमारे साथ, सबके साथ हुई हैं. आई कैन लाइक ऑब्वियसली सबके साथ हुई, आई कैन वाउच ऑन दैट. तो हम लोगों को क्या करना, वी हैव टू रीविजिट दैट सिचुएशन इन आवर माइंड, और उसके बाद उसमें से हम लोगों ने उसको एकदम, उस ब्लॉक को हम लोगों ने रिमूव करना है. until and unless that gets removed ना, आप अपने लाइफ को इंजॉय नहीं कर सकते, आप अपने लाइफ में सफलता नहीं प्राप्त कर सकते. उसको हम लोगों ने उस ब्लॉक को, उसको वहां से, उसको वूंड को ना, उसको हमने निकाल के बाहर फेंकना है. बाहर फेंकने के बाद जो है हमने उसके साथ, वी हैव टू कम एट पीस विद इट to get a blissful life. Blissfulness, ma'am, with respect to all the people around here, blissfulness will never come to you unless you tend and you have a mentality to forgive. Forgiveness is very important. जो पर्सन जो आपको पता है कि ना, एक वर्ल्ड के जो हैप्पीएस्ट पर्सन है ना, ही इज अ मंक. तो उनके ब्रेन के ऊपर ना काफी सारे रिसर्चेस हो रहे हैं. एक बार मैंने डिस्कवरी में भी देखा था, बहुत सालों पहले की बात है. वो ईईजीज होते हैं उनके ब्रेन में, बहुत सारे वो इलेक्ट्रोड्स लगा के ना उनके ब्रेन को वो स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कैसे, मतलब व्हाई ही इज द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑफ दिस वर्ल्ड. देयर आर मेनी मंक्स आल्सो. मंक्स भी बहुत सारे होते हैं जो कि हैप्पीएस्ट नहीं होते. वो पर्टिकुलर पर्सन कैसे हैप्पीएस्ट है, वो अपने बारे में यही बताता है कि वो अपने मन में सिर्फ बोलता ही नहीं है कि मैं अगर आज ये बोल रही हूँ ना कि मुझे माफ करना है, सबको माफ करना है, लेकिन मन के अंदर मेरा स्टिल वो रह रहा नहीं. वी हैव टू प्रैक्टिस दैट एक्चुअली, है ना. जब भी हमें उस पर्टिकुलर पर्सन की या उस इंसिडेंट्स के बारे में याद आता है ना, तो अगर हम लोग, उनको लगता है कि ठीक है, इट वाज अ इंसिडेंट, इट हैज गॉट पास्ट, पास करो उसको, मतलब उसको फॉरगेट करो. आई एम सॉरी, फॉरगेट नहीं भी कर सकते हो तो फॉरगिव करो एंड मूव ऑन. मूविंग ऑन इज द बेस्ट थिंग दैट वी कैन ऑल डू. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो उस मंक ने यही बताया था कि जो भी चीजें हैप्पी रहने के लिए, जो भी चीजें, वो हमें पता ही है, हमने इकिगाई में भी बहुत अच्छे से पढ़ा था उन चीज को कि हैप्पी रहने के लिए क्या, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू फॉरगिव. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये. फॉरगिव करना इज इज ब्लिसफुल, एक्चुअली ब्लिसफुल. हम लोगों को तभी पता चलेगा कि हम लोग एक ब्लिसफुल लाइफ, मतलब इट्स वेरी इजी टू नो. आप अपनी आंखें बंद करके सोचिए कि क्या 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 हमारे लिए, हमारे मन में किसी के लिए कोई हेट्रेड फीलिंग है, या क्या हमारे मन में किसी और के लिए कोई हेट्रेड, कोई रिजेंटमेंट, कोई इस तरह का फीलिंग है. तो फिर हम लोगों को उसको रिमूव करना है. हम लोगों ने उसको इरेडिकेट करना, जैसे कि गुलाबों में से वो थॉर्न्स को रिमूव करते हैं ना, उसको हाथ में उठाने के लिए, उन थॉर्न्स को सारे के सारे, उन कांटों वाली मूवमेंट्स को, उन मूवमेंट्स को हमने निकाल के हमने साइड में रखना है. और हम लोग तभी एक उस गुलाब की खुशबू को हम लोग अब उस गुलाब की खुशबू से हम अपने लाइफ को मोहित कर सकते हैं, राइट. तो इसी तरह से हमने अपनी लाइफ को भी बेड ऑफ रोजेस बनाना है विदाउट द थॉर्न्स. तो वो थॉर्न्स आते रहेंगे, हमने उनको उस मोमेंट्स में जा जाके उस मोमेंट्स को फॉरगिव करते जाना है, तभी हम लोग एक ब्लिसफुल लाइफ को जी सकते हैं. Yes, I think we are already overshot time. So, ma'am, if you want to, Poonam ma'am, if you want to add something to it, please do. And obviously, if anyone of you, anyone among the participants wants to add anything to you, add anything to what we said, then please go ahead. Thank you so much for having me. Thank you, Priya. You explained very well. And thank you, Chanchal, for reading so well. And thank you, Meetu, for reading so well. And Chanchal, I must appreciate that you're getting better day by day. Thank you for having so much of confidence to read. And anyone would like to share anything? Thank you, Priya. Explained so well. किसी को कुछ बोलना है, शेयर करना है, कोई प्रैक्टिस के बारे में कुछ अपनी कोई विक्ट्री बतानी है, प्लीज फील फ्री टू शेयर बिफोर वी क्लोज द मीटिंग. Poonam, can I add something? हाँ जी, प्लीज सुनैना, प्लीज, ऑफ कोर्स. पहले तो थैंक यू सो मच प्रिया, इतने अच्छे से समझाने के लिए. सो आई जस्ट गॉट, मेरा थोड़ा थ्रोट लाइक ग्लूड, जो भी प्रिया ने बोला. जैसे ये सारी चीजें जो शुरू हुई थी लाइक फेथ से, लाइक फेथ इन गॉड, कि लाइक गॉड नेवर पनिशेस यू,
गॉड कभी जज नहीं करते हैं। तो ना मेरे दिमाग में ऐसे ही आ रहा था कि हम इन सब प्रैक्टिसेस के साथ साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग चीज होती है, वो होती है सरेंडर। जब आप किसी भी चीज में फेथ रखते हो ना, आप सरेंडर कर देते हो, चाहे वो कोई इंसान हो या कोई सिचुएशन हो। सरेंडर मतलब समर्पित कर देना। तो आप मतलब सबकी लाइफ में होता है कोई ना कोई ऐसा वूंड। तो जब आप फेथ रखते हो यूनिवर्स में, ग्रैटिट्यूड का मतलब ही फेथ होता है ना, कि आप फेथ रख रहे हो, ग्रैटिट्यूड कर रहे हो, तो सरेंडर पैरेलल आपकी लाइफ में डेवलप हो जाता है। एंड व्हेन यू सरेंडर समबडी एक्शंस टू द फीट ऑफ यूनिवर्स और योर गॉड, जो भी जिसको भी आप मानते हैं, फॉरगिवनेस लाइक कम्स इवेंचुअली, स्लोली एंटर हो जाती है लाइफ में। सो दैट्स माय टेक अवे। Beautiful sharing, Sunena. Actually, the surrender thing is actually very important. हम भूल जाते हैं. Beautiful. Sunena, you always share very simply but very powerful sharings you always have. Thank you so much. Thank Sarojji you so wants to say much. something. And have the most wonderful day today. Make the most of the day today. Be very, very thankful for each and everything. हर एक चीज के लिए शुक्रिया करिए. जो चीज आप अपने काम के लिए, जो चीज आपकी हेल्प करती है, और अदरवाइज ऑल्सो बिकॉज हम देखेंगे कि जो चीज को हम टच करते हैं वो सभी हमारे काम को हेल्प करती हैं. सो हैव द मोस्ट अमेजिंग, मोस्ट प्रॉस्परस डे Sarojji टुडे. wants to share something. I think her hand is raised. किसका? सरोज। हाँ जी सरोज जी, प्लीज शेयर करिए. हाँ मैम, वो ना मैंने कल एक डॉक्टर शिल्पी सिंह है, पहले तो थैंक यू हाँ जी. इतने वंडरफुल सेशन के लिए, थैंक यू सो मच. तो वो आज मुझे मॉर्निंग में कॉल कर रही थी 6:05 पर कि उनका ना वो खुल नहीं रहा है पेज, ज्वाइन अच्छा. करना चाहती हैं. कल उन्होंने ग्रुप ज्वाइन किया है, तो वो कह रही है कि मैं जूम पे जा रही हूँ तो ये कुछ इनवैलिड पेज दिखा रहा है. तो इसमें कोई टेक्निकली हेल्प हो सकती है उनकी कि वो हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लें? सरोज जी, उनको ना नंबर दे दीजिए, मेरा या प्रिया का. हाँ हम जी, लोग हेल्प कर देंगे. ठीक है. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच. ठीक है जी, ठीक है. Thank you so much. Have the most amazing, most exciting, most prosperous day today. Make the most of it. Ma'am, thank Thank you. you so Thank much. you, Thank you thank you, so Poonam. much. Thank Thank you, you. Priya. Thank you, Priya ji. Thank you everyone for Very, very joining. beautiful. Thank you. Thank you. All of you. Thank you so much. Thank For you. nice session.